पॉलिनोमियल्स। आज की सीरीज में 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ओके, simple question and but very important. Okay, the question of 1 is find a quadratic polynomial with the given numbers as the sum and the product of the zeros. यहाँ दो लिए हैं 2/3 and -1/3. Sum is 2/3 and the product is -1/3. In the second, 0 is a sum and -4/3 प्रोडक्ट। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको अल्फा और इसको बीटा ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में क्या दिया है, सम ऑफ द जीरोस, इट मींस सम ऑफ द जीरोस इज 2/3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू -1/3। अब इससे हमको बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां पुट करेंगे x² माइनस सम ऑफ द जीरोज इज 2/3 x एंड द प्रोडक्ट इज -1/3। ओके, 3 मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन में तो जनरल फॉर्म क्या बन जाएगी, 3x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द सम इज 2/3 एंड द प्रोडक्ट इज -1/3। सेम क्वेश्चन इन द सेकेंड। हियर इज गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड द प्रोडक्ट -4√3। The general form of quadratic polynomial x² minus sum of the zeros into x plus product of the zeros. Okay, so now x² minus sum of the zeros is 0 into x and the product is -4√3. The answer is x² minus 4√3 equal to 0. This is a quadratic polynomial. Now question number 2. The question number 2 is find the zeros of the following polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient of the polynomials. The first is 3x² plus 4x minus 4 and the second is √3x² minus 11x plus 6√3. Okay, first 3x² plus 4x minus 4. First we have to find the zeros of this polynomial, then verify the relationship. So here a equal to 3, the coefficient of x² is a, coefficient of x is b, it means b equal to 4 and c equal to -4. Now find the alpha and beta by splitting the middle term. 3 into 4 -12. So we can factorize -12, it means 6x minus 2x. 6x minus 2x is 4x and 6 into -2 is -12 minus 4. Take 3x common. So we get x plus 2. Here we take -2 common. We get x plus 2. Sign change. Minus common लेने पर क्या होता है? Sign change. It means x plus 2 and 3x minus 2 are the factors. Now if x plus 2 equal to 0, it means x equal to -2 and ये तो अल्फा हो जाएगा -2 and the second one 3x minus 2 equal to 0. It means 3x equal to 2, then x equal to 2/3. This is equal to beta. Now verify the relationship. Okay, how to verify? I am doing here. The verify the relationship means we know that alpha plus beta equal to -b/a. यही रिलेशन को लाना है। सेकेंड है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a. नाउ टेक अल्फा प्लस बीटा. The value of alpha and beta is -2 plus 2/3. Add these two one. So we get 3 into 2 -6 plus 2/3.
it is equal to the minus 4 by 3. Minus 4 is the value of 4 is the value of B and 3 is the A. So we can write minus 4 is B by A. Verify the relationship. Alpha plus beta equal to minus B by A. Now product of the zeros, alpha into beta, which is equal to the minus 2 into 2 by 3, which is equal to the minus 4 by 3. And the minus 4 is the value of C and the value of A is 3. So we can write minus 4. Minus 4 की जगह क्या लिख सकते हैं? C और 3 इक्वल टू A. अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C बाई A. यानी ये हमारा सही है. सिमिलरली सेकेंड, इसका सेकेंड पार्ट बताते हैं. सेकेंड वन √3x² माइनस 11x प्लस 6√3. यानी सबसे पहले इसको फैक्टराइज करके हमको फाइंड करने अल्फा एंड बीटा. तो प्रोडक्ट चाहिए 6√3 इंटू √3 विच इज इक्वल टू द 18. 6√3 इंटू √3. √3 इंटू √3 3 इंटू 6 18. और नाउ सम इज 11. इट मीन्स 9 इंटू 2 18. देखिए √3x² माइनस 9x माइनस 2x. मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, सिंपल. ओके, नाउ टेक कॉमन. √3 एंड 9. तो सबसे पहले क्या कॉमन आ सकता है? सिर्फ √3 ही यहां से कॉमन आ सकता है. तो लिखेंगे √3x. तो यहां कॉमन लिए x माइनस. अब 9 को √3 से डिवाइड करना है, तो आप लोग देखिए कैसे करेंगे. 9 डिवाइड बाई √3. एक तरीका है कि इसको रेशनलाइज कर लीजिए, तो आपके लिए आसान हो जाएगा. ये होगा 3 से कट गया 3√3. या फैक्टर कर लीजिए इसके, तो ये हो जाएगा 3√3. और यहां कॉमन लेंगे -2. तो x प्लस की जगह क्या हो जाएगा? -2 से इसको डिवाइड करेंगे 3√3. तो फैक्टर्स होगा इसके x माइनस 3√3 और दूसरा हुआ √3x माइनस 2. अब इक्वल टू 0 है, इन दोनों में 0 करेंगे. तो फर्स्ट करेंगे इफ x माइनस 3√3 इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू 3√3. तो फर्स्ट इज अल्फा. ठीक है. सेकेंड माइनस √3x माइनस 2 इक्वल टू 0. √3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 बाई √3. इट मीन्स बीटा इक्वल टू 2 बाई √3. अब हमको वेरीफाई करना है रिलेशन. क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए? माइनस b बाई ए के. अब यहां से ए बी सी लिखते हैं. a इक्वल टू √3 कोफिशिएंट ऑफ x², b इक्वल टू -11 एंड c इक्वल टू 6√3. देखिए अब हमको सम ऑफ द जीरोस करना है. अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा है 3√3 प्लस 2 बाई √3. अब देखिए जब इसको ऐड करते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 9 प्लस 2 बाई √3. यानी ये हो गया 11 बाई √3. अब 11 बाई √3 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक और माइनस, क्योंकि पॉजिटिव है तो 2 माइनस लगा सकते हैं. माइनस माइनस यही सेम चीज है. अब -11 किसकी वैल्यू है? b की और a की कितनी है? √3. तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई ए. हो गया वेरीफाई. सेकेंड है हमको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा. अल्फा की वैल्यू है 3√3 और बीटा कितना है? 2 बाई √3. ठीक है. अब यहां पर क्या आया? 2 बाई √3. 3 इंटू √3. √3 कैंसिल, या फिर कैंसिल नहीं करेंगे. हम लोग को क्या चाहिए? c चाहिए. 3 इंटू 2 क्या हुआ? 6√3 बाई √3. काटना नहीं है,
सीधा 3 इंटू 2 √3 बाई √3। अब 6 √3 किसकी वैल्यू है? c इक्वल टू c बाई ए। हो गया। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर आ गया, अल्फा बीटा सी बाई ए के। यानी यही इसी तरीके से हम लोग को वेरीफाई करना है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 and -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये क्वेश्चन भी अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए1 प्लस ए प्लस 1x प्लस बी, 2 and -3 are the zeros. It means alpha equal to 2 and beta equal to -3. Then find the value of a and b. Okay. See. Alpha equal to 2. It means हम लोग पहले पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b. It is equal to the 4 2a plus 2 plus b. It means 2a plus b plus 6 equal to 0. It means 2a plus b equal to -6 and b equal to -6 minus 2a. हम लोग यहाँ से b की वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, अब -3 पुट करते हैं, तब क्या आएगा आपका पॉलिनोमियल? -3 होल स्क्वायर, एक्स की जगह -3, देन a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b। ये हो गया 9 -3a -3 प्लस b इक्वल टू 0। इट इज इक्वल टू द -3a प्लस b इक्वल टू 9 -3 इक्वल टू +6। Now put the value of b in this. This is the 2. यहाँ पर putting b equal to -6 minus 2a in 2. Equation 2. -3a plus b, it means -6 minus 2a plus 6 equal to 0. 6 cancel. -3 minus के 5a equal to 0. It means a equal to 0. Value of b equal to -6 minus 2 into 0. It is equal to the -6. The value of a equal to 0 and b equal to -6. यही फाइंड करना था, वैल्यू ऑफ a and b। क्वेश्चन नंबर 4, if alpha beta are the zeros of the quadratic polynomial fx equal to 3x square minus 5x minus 2, then evaluate alpha square plus beta square. 3x square minus 5x minus 2. Okay, now a equal to 3, b equal to -5 and c equal to -2. Sorry, c equal to -2. Okay, so we know that alpha plus beta equal to -b by a. Sum of the zeros क्या होता है? -b by a. अब यहाँ पर -b equal to the -5 and a is 3. Okay, so which is equal to the 5/3. And the product of the zeros, c by a, it is equal to the -2 by 3. Now we have to find the alpha square plus beta square. Alpha square plus beta square को हम लोग लिख सकते हैं alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta, क्योंकि इसका स्क्वायर खोलेंगे a plus b का होल स्क्वायर से, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और उसमें से माइनस करेंगे तो यही बचेगा। तो अब हम लोग लिखेंगे 5/3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू -2/3, which is equal to the 25/9 plus 4/3. Now take LCM. 3 and 9 का LCM 9. 25. 3 into 3 9. 3 into 4 12, which is equal to the 37/9. It means alpha square plus beta square equal to 37/9.
The last question is, if 1 is a zero of the polynomial px, ax square minus 3a minus 1x minus 1, then find the value of a. बहुत easy question है, simple. Polynomial ax square minus 3a minus 1x minus 1. 1 is the zero. It means we have to put 1. The value equal to 0. Now a into 1 square minus 3a minus 1 into 1 minus 1 equal to 0. Just put x equal to 1. So we get a minus 3a plus 3 minus 1 equal to 0. A minus 3a is minus 2a and 3 minus 1 is 2. जब एक प्लस और एक माइनस नंबर है तो इजीली हम लोग इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं क्योंकि दोनों में साइन चेंज. देन 2/2 a equal to we get a equal to 1. द आंसर इज 1. इस तरीके से 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे. इन 5 क्वेश्चन में से बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं. इनको अच्छे से आप तैयार करें बोर्ड के लिए. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.